مانسہرہ سے خبر دی جہاں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں لاپتہ بچے کی باقیات مل گئیں۔ 4 سال کے جمال شفیق کو کپڑوں اور جوتوں سے شناخت کیا گیا۔ اہل خانہ نے تدفین کر دی۔ بچے کے والد کا کیا کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اکتوبر تو گزر گیا، ہمارے تقریباً 8 بندے شہید ہوئے، لیکن ایک بچہ ہم سے گم ہو گیا۔ 4 سال اس کی عمر تھی۔ اس وقت ہم کافی ڈھونڈتے رہے، اب کافی تلاش بھی کی، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہ چلا۔ تو ہم نے دوبارہ یہ مکان کی تعمیر شروع کرنی تھی آج، تو کل ہم نے اس کی افتتاح کی اور آج ہم اس کی بنیاد کھود رہے تھے۔ یہ ہمارا مکان پرانا مکان تھا، تو اس کے اوپر ملبہ وغیرہ آ گیا، تو ہم نے دوبارہ جس وقت ہم نے کھدائی شروع کی تو کچھ آثار ہمیں محسوس ہوئے، تو پھر دیکھا اس بچہ ہی تھا، اس کے کپڑے وغیرہ بالکل ٹھیک تھے، تو ہڈیاں وغیرہ تھیں اور لیکن کپڑے وغیرہ اس کے بالکل اچھی حالت میں تھے، چپل وغیرہ سب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہوگی کہ وہ بچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ہمیں اس کو پھر ہم دفنایا، اس کی قبر وغیرہ بنائی۔ طوفانی برسات گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں بڑی تباہی، سیلابی رالوں نے تھور، نیاڑ، کھنبری اور داریل کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ رابطہ سڑکیں متاثر، بجلی کا نظام درہم برہم، سینکڑوں خاندان مشکلات میں گھر گئے۔ فخر عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ چلاس کی وادی تھور میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ٹھوسرکا کی رہائشی آبادی بھی دونوں اطراف سے سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ زرعی زمینیں، فصلیں اور باغات بھی شدید متاثر ہوئے۔ وادی تھور کی مرکزی رابطہ سڑک بھی کئی مقامات پر سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی۔ چلاس کے علاقے نیاٹ میں بھی سیلابی ریلوں سے رابطہ سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ داریل کے کھمبری شنگ شرنالہ میں تباہ کن سیلاب سے 2 رہائشی مکانات اور متعدد مویشی پانی میں بہہ گئے۔ بونرداس کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شارع قراقرم بند ہو گئی۔ فخر عالم، سما، دیامر۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے علاقے مالگن میں طوفانی برسات، مکان کی چھت گر گئی، 15 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، ملبے سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ہرمز کو کنٹرول میں لینے کا اعلان۔ فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے ایران نے توڑ دیا، اب ہم اپنے ہرمز کا تحفظ کریں گے، آبی گزرگاہ کی سیکیورٹی ہم دیں گے اور اس کے لیے امریکہ کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 90% امکان ہے مشتبہ خامنائی زندہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر خلیج فارس میں ایران کی پھر ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا، کہا ایران کے خلاف ناکہ بندی دوبارہ نافذ کی جا رہی ہے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے تمام تجارتی کارگو پر 20% فیس بھی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ امریکہ کو اب آبنہ ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی۔ آبنائے ہرمز کے انتظام میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران سے اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کے سنگین نتائج ہوں گے، ایرانی فوج نے واضح کر دیا۔ ایرانی افواج کی مشترکہ کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خطے کے ممالک کو بھی خبردار کیا کہ امریکہ سے کوئی بھی تعاون ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت تصور ہوگا۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو اثرات خطے کے ممالک تک پہنچیں گے اور اس کے ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت بحران سے دوچار، معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل امریکہ نے کی۔ جب تک امریکہ اس کی پاسداری نہیں کرے گا، ایران بھی عمل درآمد کا پابند نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس، کہا مسقط میں ہونے والے مذاکرات صرف آبنہ ہرمز پر مرکوز تھے، ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ثالث ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے اب بھی کوشاں ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ MOU کے مطابق آبنہ ہرمز کا انتظام ایران اور عمان کی مشاورت سے طے ہونا تھا، لیکن امریکی دباؤ پر عمان پیچھے ہٹ گیا۔ ایرانی ترجمان نے ایٹمی تنصیبات پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو رسائی دینے کے امکان کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ ایرانی قوم کا مطالبہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندی سے عالمی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال، پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کے مختلف طریقہ کار پر غور شروع۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیٹرولیم پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کو قواعد پر مبنی نظام کے تحت چلانے پر اتفاق کیا گیا۔
शुरा का तेल की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर इतफाक, शफाफियत बढ़ाने पर जोर दिया। अली परवेज मलिक कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कमेटी की जिम्मेदारी मजीद अहम होगी। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की से कम हैं, भारत के बराबर हैं। दरामदी डीजल पर इन्हिसार कम करने के लिए रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम तजवीज़ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। दुख की घड़ी में कतरी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में उनके वालिद शेख हमद बिन खलीफा की दूरअंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मरहूम की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी शेख हमद की खिदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए मरहूम की दरीना मोहब्बत, शफ़क़त और गर्म जोशी को सराहा। अमीर कतर ने ताज़ियत करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह जज्बा बरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दौरे कतर के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2000 सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल अपने दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2000 सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंचे हैं। तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल अपने दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आपको लंदन से खबर दें, जहां तबलीगी इज्तिमा में दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। लंदन पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के तहत इज्तिमा मुकर्ररा वक्त से पहले ही खत्म करा दिया। गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात जारी है। बात करते हैं शहर कायद की, जहां पर माल महफूज है ना जान। 3 तलवार के करीब डॉक्टर आकाश कत्ल। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आकाश रकम जमा करवाने के लिए बैंक पहुंचे तो मुल्जिमान ने कार पर हमला कर दिया। मुल्जिमान की फायरिंग पर बैंक के गार्ड ने भी जवाबी गोलियां चलाईं। फायरिंग के तबादले में एक गोली डॉक्टर आकाश को जा लगी। डॉक्टर आकाश मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मुल्जिमान 25 लाख रुपए लूट कर बासानी फरार हो गए। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटमार के दौरान कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त आकाश के नाम से हुई। सीसीटीवी फुटेज में एक मुल्जिम भागता हुआ आया, पहले गार्ड पर फायरिंग की, कार का गेट खोलकर पैसों से भरा बैग उठाया और फायरिंग करते हुए फरार हो गया। सीएम सिंध मुराद अली शाह को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शाह को और ख़ास तौर पे कि मैं आर्मी चीफ पुरजोर अपील करूंगा कि ये एक्शन लिया जाए। एसएसपी साउथ के मुताबिक शहरी गाड़ी में बैंक से रकम निकाल कर दूसरे बैंक जा रहा था। सीसीटीवी फुटेजेस भी कलेक्ट की जा रही है और रूट में भी बनाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द जो है इनको हम कैफे किरदार तक ला सकें। पुलिस का कहना था कि वाक़ये के वक्त बैंक के गार्ड ने भी डाकू पर फायरिंग की। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश का कत्ल। वुरसा सरापा एहतजाज। अहले खाना ने लाश क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब रख के सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। नवीद कमाल से जानते हैं। नवीद, बताइए उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल मौजूद हैं। 3 तलवार पर नौजवान आकाश डकैती मज़ाहमत पर उसका कत्ल हुआ था। इसके लवाकिन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। नहीं उठेंगे यहाँ से, हम कभी नहीं उठेंगे यहाँ से। हम मौत से बच के आए, हमें 2-2 गोलियां लगने वाली थी। हम कभी नहीं उठेंगे, यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे होंगे हम जब तक मुल्जिम नहीं मिलता। 25 साल का यंग डॉक्टर जो अभी जॉब कर रहा था, दिन दिहाड़े जो 12 बजे डकैतों का निशाना बन गया। इनका ये कहना है कि एक बेगुनाह नौजवान को कत्ल किया गया, दिन दिहाड़े पोश इलाके में कत्ल किया गया। इस पे ये इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो कराची में ही डकैती की एक और बड़ी वारदात हुई। गडाप में 8 डाकू एक घर में घुसे, अहले खाना को यरगमाल बनाया और करोड़ों रुपए मालियत का सोना, चांदी, कीमती घड़ियां और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान 200 तोला सोना और 9 लाख हार लूटकर फरार हो गए। सामान में हीरे की अंगूठियां, ब्रेसलेट, झुमके, कंगन भी शामिल थे। 300 तोले चांदी, 25 लाख रुपए नकदी, कीमती प्राइस बॉन्ड और मोबाइल फोन्स भी ले उड़े।
कराची के इलाके गडाप में डकैती की वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए, फैमिली को यरगमाल बनाया और करोड़ों रुपए मालियत का 175 तोले सोना, 300 तोला चांदी ले उड़े। मुलजिमान ने लैपटॉप, घड़ियां, बच्चों का सामान और मोबाइल फोन भी ना छोड़ा। किसी को नहीं पता, यहाँ से एक गेट है, वहाँ से 4 बंदे वहाँ से हैं, फिर वो मेन गेट उन्होंने खोला है, फिर वहाँ से भाई के अंदर लाई हैं और ये वारदात की है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। शवाहिद है उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, CCTV फुटेजेस भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शक की बुनियाद पे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ हफीज़ बलोच, समा, कराची। ड्रैब और FIA टीम का इस्लामाबाद के गौरी टाउन में छापा। अद्वियात तैयार करने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री में जानवरों की अद्वियात भी तैयार की जा रही थी। टीका खानसानी से जानते हैं। टीका बताइएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद के रहायशी इलाके में ये है वो घर जहाँ पे जाली अद्वियात जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही थी और यहाँ पे जाली और गैर लाइसेंस शुदा जो अद्वियात हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो पकड़ा गया है। यहाँ पे आके FIA और ड्रैब की टीम ने मुश्तरका छापा मार के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करके इस यूनिट को, इस घर को सील कर दिया है और इसकी तहकीकात के लिए बाकायदा जो सैंपल्स हैं उन अद्वियात के वो लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं। ड्रैब ने CEO की हिदायत पर और FIA की मुश्तरका टीम ने ये छापा मार के आज एक ऐसा यूनिट पकड़ा है इस्लामाबाद में जहाँ पे इंसानों की और पोल्ट्री की अद्वियात जो जाली तौर पर तैयार हो रही थी वो पकड़ ली हैं। जी बहुत शुक्रिया टीका आपका। इलाज की आस में मौत, जिम्मेदार कौन? इस्लामाबाद के रिहैबिलिटेशन सेंटर में नौजवान की पुरअसरार हलाकत, वालिदैन का बेटे को कत्ल करने का इल्जाम। लवाहिकीन का कहना है कि बच्चे को इलाज के लिए दाखिल कराया, 20 दिन के बाद लाश मिली। थाना शहजाद टाउन में वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। सेंटर चलाने वाले अफराद फरार हो गए हैं। अब तक एक भी मुलजिम हाथ नहीं लगा।